Hi you all, welcome to my channel The Literature Classroom. This is my first video on this platform and today we are going to discuss Beloved by Toni Morrison. As you know, this is your DSC 10 American Literature and Beloved is Unit 1 of that paper. So in this video I am going to give you ऑल द करेक्टर स्केच एंड मैं आपको बताऊंगी हर करेक्टर्स के बारे में इन अ शॉर्ट एंड ईजी वे जिससे आप पेपर के टाइम एक वेल फ्रेम आंसर लिख पाएँ. इन दी नेक्स्ट पार्ट आई विल गिव यू दी समरी इन अ वेरी ईजी वे. वो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगी जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको कम टाइम में ही ज़्यादा पार्ट अच्छे से समझ आए. हाँ जी, तो देखो ये नॉवल बेसिकली आपको बताती है स्लेवरी के बारे में एंड उसका इम्पैक्ट लोगों पे कैसा होता है. इसमें हम देखेंगे एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्वीट होम. आप इस वर्ड से ही आयरनी का पता लगा सकते हैं इस नॉवल में, जिसमें दिखाया गया है कि सारे स्लेव्स, सारे प्लांटेशन वर्कर्स जिसको एनिमल से भी ज़्यादा बुरा ट्रीट करा गया है, उनको एक ऐसी जगह पे रख रहे हैं जिसका नाम है स्वीट होम. Okay, so Beloved by Toni Morrison is the haunting novel that delves into the legacy of slavery and its impact on the individual and community. And with community, I mean the community of slaves of that African peoples जिनको उन्होंने बंदी बनाया हुआ है and उन्हें वो एनिमल से भी ज़्यादा बुरा ट्रीट करते हैं. So this novel is basically set in the post Civil War Ohio. Now let's talk about the main character of this novel, Setha. She's a black woman. She's an escaped slave. She escaped from the sweet home, as I mentioned earlier. She's wife of Hele and mother of four children: Bugler, Howard, Beloved, and Denver. She's devoted to all her children, and she also tried to murder all her four children to save them from the act of slavery. She also succeeded in killing of her oldest daughter. Her name was Beloved, and she chose death over slavery for her child because no mother or no parent want his or her child to go through the same pain as they went through. So उसने डेथ एक अच्छा ऑप्शन चुना rather than अपनी बेटी को या फिर अपने बच्चों को स्लेवरी की तरफ धकेलना. She also carries a heavy burden of past trauma. She also struggles to rebuild her life after escaping from sweet home. Siddha is a complex and yet powerful character, driven by fierce love for her children. As I mentioned, she was very much devoted towards her children. Now Setha lived at 124 Bluestone and now she is haunted by the ghost of her daughter of Beloved. अब आप सोचेंगे यहाँ पे घोस्ट का मेंशन कहाँ से आ गया स्लेवरी के बीच में. अब देखिए, जिस डॉटर बिलोवेड को उसने बचपन में मारा था, जिसका मर्डर करा था, उसको उसका ही घोस्ट दिखता है जो कि उससे बातें करेगा. अब आने वाले आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे बिलोवेड उसकी सबसे छोटी बेटी डेनवर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेगी और डेनवर उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैरेक्टर, बिलोवेड. She is Setha's decreased daughter. As I told you earlier, Setha murdered her as her motherly act of saving her child from the act of slavery. Beloved returned as a ghost-like presence demanding love and attention. उसका बचपन में मर्डर हो गया था, तो नॉवल में दिखाया गया है कि बिलोवेड वापस आती है अपनी माँ से, अपनी कम्युनिटी से वही प्यार, वही इज्जत एक्सेप्ट करती है, डिमांड करती है. And Beloved is presented as an allegorical figure in the novel. An allegorical figure means something which contain hidden or mortal meaning. अब hidden meaning से मेरा मतलब है कि जो Beloved है वो represent कर रही है destruction and painful past of not just her but जितने भी slave हैं उनका एक ही metaphorically representation है Beloved के द्वारा, जो दिखाता है कि slaves को कितना pain और trauma झेलना पड़ता है. Beloved not just only signifies the painful past of African Americans but also she signals the possibility of brighter future. वो केवल यही नहीं दिखाती कि उनके पास्ट में कितना दुख है, उनको कितना ट्रॉमा है, उन्होंने क्या सब झेला. वो एक
पॉसिबिलिटी का एलिमेंट भी ऐड करती है कि नहीं, अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो एक दिन आएगा जब कुछ सब अच्छा होगा। Now Denver, Sethi's youngest daughter. She is named after Amy Denver. She is a slave who helped Setha during her time of delivery when she was escaping. And Denver is the most dynamic character. She lived her life in solitude and plays only with the ghost of her dead sister. जैसे मैंने पहले आपको बताया था, डेनवर और बिलवेड का एक इमोशनल बॉन्ड बनेगा। Now Setha also tried murdering Denver when she was a baby, but she somehow survived, and Denver struggled throughout her life because of her family's traumatic past. She is mother-in-law of Setha and mother of Heli. She's a former slave, and her son brought her out of this slavery. She's a very wise and spiritual woman who seeks to heal and uplift her community. After returning from the sweet home, like not returning but basically escaping from sweet home, उधर से निकलने के बाद उसने एक अपना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लिया था नियर हर हाउस, जहाँ पर वो सारे एस्केप स्लेव्स की टेक केयर करती थी, उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाती थी ताकि वो अपने लाइफ में कुछ बेटर कर पाएँ। सो बेसिकली बेबी सक्स एक्ट एज अ मदरली फिगर इन द होल नॉवल, जहाँ पर हर ऑर्फन को, हर इंडिविजुअल को जिसने अपना लव्ड वन खोया है, एक मदरली एक्ट ऑफ लव मिलता था बेबी सक्स के थ्रू। She also embodies hope and resilience, but her efforts are ultimately undetermined by the enduring efforts of slavery. उस इन लेडी में बहुत ज़्यादा होप एंड रेजिलियंस था, बट एक पॉइंट आता है जब सब हार मान जाते हैं इतना ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस के बाद। पॉल डी भी एक फॉर्मर स्लेव है जो सेटा के साथ ही एस्केप हुआ था, and Paul D is a source of strength and comfort for Setha. She is also her lover, जो इनके younger days में, like during their teen age, he used to love Setha. He adores her. पॉल डी ने बहुत ब्रुटैलिटी फेस करी है और अपनी आंखों के आगे बहुत कुछ होता हुआ देखा है, जिससे उसके माइंड में, उसके साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे एक इमोशनल स्कार हो गया है, बट ही ऑलवेज हेल्प सेठा टू फाइंड solace. Paul D is the last surviving male amongst the slaves from the Sweet Home plantation. He is sad, like somehow, as I told you earlier, वो उसका lover था. He used to like Setha. He got sad when Setha chose Hele over him. He physically and emotionally brutally suffered. He arrived Bluestone to become Setha's lover again. After Hele's death, he wants Setha to accept her proposal. हाँ जी, our now character is Stampede. He's also a former slave. He helps Setha to support her and also her family. Also, like baby Suggs, he's a very respected and valuable member of their community. He is regarded as the figure of salvation and he is welcomed at every door in town. उसका सब वेलकम करते थे, एक बहुत इज्जत की नज़रों से इसको देखते थे। आपको याद है मैंने कहा था कि डेनवर समहाउ बच गई थी जब सेठा ट्राइड टू किल हर। Stampede was the person who saved Denver when Setha was trying murdering her. Stampede is also a very intellectual man. He questions the nature of community obligation to its member when their community neglects Setha, Denver, and Paul D. He also represents a sense of community and the importance of aiding those who have suffered under slavery. Now, school teacher is the most brutal and inhuman person you'll ever come across in this novel. He is the sadistic owner of the Sweet Home plantation. पहले ये ओनर नहीं थे, पहले मिस्टर गार्नर इसके ओनर थे, एंड उनकी डेथ के बाद स्कूल टीचर ने ये पोजीशन और ये अथॉरिटी संभाल ली। और अगर आप पूछेंगे कि स्कूल टीचर कौन है गार्नर के रिलेशन में, तो जो गार्नर की सिस्टर थी ये उनके हस्बैंड है, बट उनकी सिस्टर की डेथ हो गई है, तो ही इज़ द विडोअर ऑफ मिस्टर गार्नर सिस्टर. He treats slave no better than human. He used to whip them, kick them, उन पे लोहों की जंजीरों से मारना, उन पे कुछ भी करना, जितना ब्रूटल आप सोच सकते हैं वो सब स्लेव्स के साथ होता था। ऑल्सो गाइज आई रिकमेंड यू, ये जो स्लाइड्स चल रही हैं आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने हैंड नोट्स बनाइए जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम जब 1-2 दिन बचेंगे आपको वो बहुत हेल्प करेगा। आप जब पढ़ेंगे उसे तो आपको लगेगा हाँ मैंने ये पढ़ा तो है, तो प्लीज़ बस ऐसी वीडियो मत सुनिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आई सजेस्ट यू प्लीज़ राइट अदर कैरेक्टर्स इन द नॉवल, पॉल ए, पॉल एफ एंड सिक्सो। जो पॉल ए और पॉल एफ हैं वो ब्रदर है पॉल डी का। पॉल डी अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस करा है। ये लोग भी स्लेव्स थे, इन मतलब ये सब एक साथ ही रहते थे उधर स्वीट होम प्लांटेशन में। एंड सिक्सो इज़ अनदर फेलो स्लेव, उनके साथ का ही था, बट ही डाइड ड्यूरिंग द एस्केप फ्रॉम प्लांटेशन। गाइस आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज, दोनों बाइलिंगुअल में, मैं पूरा हिंदी नहीं बोलना चाहती थी जिससे आप बिल्कुल फ्रेम ना कर पाएँ आंसर। मैंने बाइलिंगुअल यूज़ करा है मेथड आपको बताने में, जिससे आपको अच्छे से समझ आ पाए और आप लिख भी पाएँ पेपर में। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस नॉवल, दिस
novel deals with the theme of motherhood, slavery, trauma of past activities, events and quest for identity. ये आप अपने स्टार्टिंग ऑफ आंसर में भी लिख सकते हैं। आप इससे अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। Now coming towards the end of this video, like towards the last slide, horrific memory and the legacy of slaves that haunts the character. सबसे पहला है Beloved Return. इस नॉवल में जो घोस्ट है Beloved का वो वापस आता है. That ghost returns because that signifies the traumatic event of not just her but of all her fellow slave, and that also gives the ray of hope कि सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा. Second thing is Setha's trauma. नॉट जस्ट सेठास ट्रॉमा बट एवरी इंडिविजुअल, एवरी कैरेक्टर जो भी इस नॉवल में है सबका एक ओन पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो ट्रोमैटिक ही है, एंड जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है दैट कॉन्टिन्यूज टू हॉन्ट देम एंड ड्राइव देयर एक्शन एंड डिसीजन. द थर्ड, ईच एंड एवरी मेंबर, कोई भी आपको ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जब आप कहेंगे कि ये कैरेक्टर अपने पास्ट से हॉन्टेड नहीं है. जो भी उनकी साइकी पे, जो भी उनके दिमाग में वो वूंड है, जो भी उन्होंने फेस करा, इतना ब्रूटैलिटी, एनिमल्स की तरह ट्रीट होना, वो नॉवल तो हमने एंड कर दी बट नॉवल के साथ एंड नहीं होगा. एज यू नो ये एक रियल इंसिडेंट, लाइक नॉट इंसिडेंट बट ये सब असलियत में होता था. हमें पढ़ के सुन के ही इतना अजीब लगता है. जस्ट इमेजिन देयर प्लाइट, जो सफ़र करते थे. आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइस अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे को बताना, कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई फीडबैक आपको बताना हो तो प्लीज़ बताइएगा. आई होप आपको पसंद आया हो और नेक्स्ट वीडियो में से संगीता बनाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.